Good morning, my dear students. In our last class, we have studied about the uses and harms of microorganisms. So, let us continue with the topic. Now, today we are going to study the microorganisms cause food poisoning. All of you had heard about the food poisoning. Now, read it. Sometimes food may get spoiled due to a variety of reasons like not keeping it covered, improper cooking, not preserving the food properly, and change in the temperature of refrigerator food due to power fluctuations. कई बार अगर हमने खाना कवर नहीं रखा है, उसे फ्रिज में नहीं रखा है प्रॉपरली, उसको हीट अप नहीं किया है, दैन इट गेट्स स्पॉइल. So what is food poisoning? Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances which are harmful for our health. कई बार माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर अस. The toxic substance produced by microorganisms make the food poisonous, causing serious illness, and it is called food poisoning. Clear? It can sometimes even cause death. That's why we should always take fresh food. We should not take stale or uncovered food. हमें कभी भी खराब खाना या uncovered food नहीं लेना चाहिए. ठीक है? What are the major symptoms of food poisoning? The major symptoms of food poisoning are vomiting, diarrhea, abdominal means stomach pain, headache, and fever. These are the symptoms of food poisoning. Which bacteria cause food poisoning? The bacteria Salmonella, underline it, the bacteria Salmonella, Staphylococcus and Clostridium. These bacteria cause food poisoning. And fungi is Aspergillus and Penicillium. Due to these bacteria and fungi, our food produces toxic substance and causes food poisoning. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा फूड है हम उसको प्रिजर्व करें जिससे कि वो ख़राब नहीं हो. There are many ways of preserving food. Now we will study how we can preserve our food. At your homes, you also see the ways how the food is stored and preserved. We know that when cooked food or milk is left warm and moist place for a long time, it is spoiled. कि अगर वो किसी वार्म और मॉइस्ट प्लेस पर बहुत ज़्यादा देर के लिए रख दिया जाता है तब वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है. Why? Due to microbial contamination. Most microorganisms cannot grow or multiply when the conditions are dry, temperature is very low and temperature is very high. तो इन तीन कंडीशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है और इसके कारण जो हमारा फूड है वो स्पॉइल नहीं होता. क्लियर? नाउ वी विल discuss all the methods that are used for food preservation. First, the definition. The process by which spoilage of food is prevented using chemical or physical method is called food preservation. What it is called? It is called food preservation. Here some of the methods are given. Let us study them. First is chemical method. Food can be preserved by using certain chemical substances which can check the growth of microorganisms. Such chemical substances are called food preservatives. What are they called? Food preservatives. You all have noticed that tomato ketchup does not get spoiled. जो tomato ketchup है वो spoil नहीं होता, whereas our tomato juice get स्पॉइल. हम जो घर पे टोमेटो जूस बना रहे हैं वो ख़राब हो जाता है और जो हम मार्केट से रियल या अदर कंपनीज़ के जूसेस ब्रॉड करते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होते. दे हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 6 or 12 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बट इन केस ऑफ आवर प्रिपेयर्ड जूसेस और जैम्स 1 or 2 days में ही वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं. वाई इज़ इट सो?
because in industries chemicals are added to preserve the food. जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप कर रही है, चाहे वो जैम्स हो, जूसेस हो, केचप्स हो और वॉटेवर जो भी हमें पैकेट में अवेलेबल थिंग्स हैं, उन सब में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, chemicals यूज़ कर रहे हैं to preserve them, and these are the commonly used preservatives that are sodium benzoate, citric acid and potassium metabisulfite. ठीक है, तो इससे जो भी हमारे फ्रूट जूसेस हैं, स्क्वैश हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, वो सभी खराब नहीं होते. Then second is preservation by common salt. By this way we can preserve fish and meat. Which items we can prevent? We can prevent fish and meat by salting. Meat and fish are covered with common salt to prevent the growth of microbes. तो salt के यूज़ से भी क्या होती है, जो microbes की growth है वो stop हो जाती है और हमारे fish और meat खराब नहीं होती. And all of you have seen द प्रिपरेशन ऑफ आंवला कैंडी. जो आंवला विंटर्स में अवेलेबल होता है उसकी कैंडी क्या होती है, उसमें हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं और वो भी लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होती है. देन थर्ड प्रिजर्वेशन मेथड इज़ preservation by sugar. Sugar reduces the moisture content of the food, thus inhibits the growth of food spoiling microorganisms. शुगर से क्या होता है, जो फूड है उसमें मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट कम हो जाता है और माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैश. सभी के एग्जाम्पल याद करने हैं कि केमिकल से हमने किन किन को प्रिजर्व किया. देन कॉमन सॉल्ट से हमने किन को प्रिपेयर किया था, फिश, मीट एंड आंवला कैंडी. बाय शुगर वी कैन प्रिजर्व जैम, जेली एंड स्क्वैशेस. Then the next point is oil and vinegar. This all of you have seen at your home. हमारे सभी के घरों में क्या होते हैं, पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं. एंड इन पिकल मेकिंग वी यूज़ ऑयल एंड विनेगर. हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं. तो इससे क्या है, जो भी हमारे पिकल्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं. मीट एंड फिश आर ऑल्सो प्रिजर्व बाय दिस मैथड. और इसी मैथड से हम मीट और फिश को भी प्रिजर्व कर सकते हैं. द नेक्स्ट मैथड टू प्रिजर्व मिल्क इज़ पाश्चराइजेशन. व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैथड? द नेक्स्ट मैथड इज़ पाश्चराइजेशन. Pasteurization is a process for preservation of milk. In this method, milk is heated at about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds to kill the bacteria present in it, and cooling it quickly to 10 degrees Celsius to prevent the remaining bacteria from growing. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, हीट करते हैं और फिर उसके बाद एकदम उसे 10 डिग्री सेल्सियस पर हम कूल कर देते हैं. तो जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एंड आवर मिल्क डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. दिस मेथड इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन. एंड हु हैज़ इन्वेंटेड फर्स्ट? लुईस पाश्चर. हु हैज़ इन्वेंटेड इट फर्स्ट? लुईस पाश्चर हैज़ invented it. The next is by cooling or freezing. सभी अपने घर में देखते हैं, हम किसी भी फूड आइटम को, जो भी एडिबल आइटम है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए कहाँ पे रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता. ठीक है, बिकॉज एट लो टेम्परेचर द माइक्रोबियल ग्रोथ स्टॉप्स. जो लो टेम्परेचर होता है उस पर माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और वो ख़राब नहीं होते. देन द नेक्स्ट इज़ कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग. इन दिस फूड आइटम्स आर फर्स्ट हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर टू किल द बैक्टीरिया. सबसे पहले उनको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. एंड दे आर सपोज टू ऑब्टेन स्टेरिलाइज्ड फूड. फिर हमें कैसा फूड ऑब्टेन हो जाता है, स्टेरिलाइज्ड, एकदम प्योर फूड हो जाता है. फिर उस स्टेरिलाइज्ड फूड को ही हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर सील कर देते हैं, जिससे कि उसमें एयर और वाटर कंटेंट
एंटर नहीं कर सके और हमारा फूड स्पॉइल नहीं हो। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग। हीटिंग kills many microorganisms and prevents the food from spoilage। हीटिंग भी क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। Milk is partially sterilized by heating it for a short time around 1 to 2 seconds at a temperature exceeding 135 degrees Celsius. What it is called? It is called ultra heat treatment। इसमें मिल्क को क्या करते हैं, हम कुछ एक सेकंड्स के लिए लगातार गर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इससे हमारा मिल्क ख़राब नहीं होता। द नेक्स्ट इज बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम द फूड आइटम्स। जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, अगर हम उनमें से वाटर कंटेंट को, जो मॉइस्चर है, उसे रिमूव कर देते हैं, then what will happen? The food will not get spoiled। जो हमारा फूड है वो ख़राब नहीं होगा। The process of removal of water from a substance is called dehydration। What it is called? It is called dehydration। Sun drying is a traditional method of preserving food। जो हम ट्रेडिशनल हमारे घरों में भी देखते हैं, कौन सा मेथड होता है वो? सन ड्राइंग। हम क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारे ग्रेन्स वगैरह हैं वो सेफ रहते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? हमें फूड प्रिजर्व क्यों करना चाहिए? फर्स्ट, इट डिक्रीज द वेस्ट ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स। जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं, हम उनको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इज़ रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी लंबे टाइम तक बनी रहती है। इट एंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी एट डिस्टेंस प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न। ऑफ सीज़न में या डिस्टेंस प्लेसेस पे भी हमें फूड अवेलेबल हो जाता है। सभी ने घरों में देखे होंगे कि जो पीस वगैरह हैं, उनको मटर होते हैं, उनको क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए स्टोर करके हम रख लेते हैं और जब उनका सीज़न नहीं होता तब हम यूज़ करते हैं। क्लियर? आई थिंक द फूड प्रिजर्वेशन techniques are clear to all. So move forward to the next topic, that is nitrogen cycle. What is the next topic we are going to study? The next topic is nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? Cycle means कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, दोबारा स्टॉप हो रहा है। दैट मीन्स साइकिल। और नाइट्रोजन नेम आया तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की ही बात करेंगे कि किस तरह वो एक कंप्लीट साइकिल में ट्रैवल कर रही है। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle. What I have said, the process of nitrogen being fixed, जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, पहले उसका क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, फिर उसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रही है और इस तरह ये कंप्लीट साइकिल चलता रहता है। What are the steps involved in it? What are the steps? The steps involved in it are nitrogen fixation, nitrogen assimilation, ammonification, nitrification and denitrification. The points are given here also: nitrogen fixation, nitrogen assimilation, ammonification, nitrification and then denitrification. So we are starting with nitrogen fixation. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. कितनी नाइट्रोजन है? 78%. Plants and animals cannot take atmospheric nitrogen directly. जो plants और animals हैं वो कभी भी डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते. It has to be first converted into useful nitrogen compounds. इसको जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, सभी को पता है. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. सबसे पहले उसका क्या रिक्वायर्ड होता है? कन्वर्जन. द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू nitrogenous compound is known as
nitrogen fixation. What it is called? It is called nitrogen fixation. कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हम उसको नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन fixation. What I have said, that the conversion of atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound is called nitrogen fixation. Now, how nitrogen fixation occurs in the environment? It occurs in the two ways. First is lightning and second is biological nitrogen fixation. What are the two methods? First is lightning and second is biological nitrogen fixation. Now, let's discuss about lightning. When lightning strikes, जब भी lightning होती है, means जब आकाश में बिजली चमक रही है, then what will happen? Nitrogen and oxygen of atmosphere react and form oxides of nitrogen. तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों क्या करेगी? रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड्स फॉर्म करेगी. These dissolve in रेन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड. और रेन के साथ ये क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ लाइमस्टोन इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स. और फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में. तो देखो दोबारा रिपीट करती हूँ क्या हुआ यहाँ पे. जब भी लाइटनिंग हुई, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों क्या हुए? मिक्स हुए. नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ. नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन के बाद वो रेन वाटर के साथ क्या होगा? सॉइल में मिक्सअप होगा और अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट इज व्हेन लाइटनिंग अकर्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन combines, then they mix with the rain water. After that goes to the soil and converts into the nitrates. ठीक है. और ये नाइट्रेट्स किस में यूज़ हो जाएंगे? प्लांट्स इनको यूज़ करेंगे फॉर देयर डेवलपमेंट. सेकेंड इज biological nitrogen fixation. We all have read about it twice in the chapter number 1 and in uses of microorganism. सभी ने ये पढ़ चुके हैं हम कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? रूट नोड्यूल्स में जो क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में. एंड व्हाट आर दीज एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स आर नॉस्टॉक एंड एनाबेनिया. Here it is. These are the examples that convert atmospheric nitrogen into the nitrates. Fine. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होगी. नाउ द सेकेंड स्टेप इज एसिमिलेशन. Plant absorb nitrates from the soil with water with the help of roots and convert them into plant proteins. अब जो plants हैं अभी तक हमारे जो नाइट्रेट्स फॉर्म हुए हैं वो कहाँ पे हैं? सॉइल में हैं. अब प्लांट्स उनको यूज़ करते हैं, सॉइल से नाइट्रेट्स को यूज़ करेंगे और उसको किन में कन्वर्ट कर देंगे? प्लांट प्रोटीन्स में. ठीक है. The herbivorous animals eat green plants and convert the plant proteins into animal proteins. और सबसे पहले उसका इंटेक कौन करेगा? हर्बीवोर्स एनिमल. और हर्बीवोर एनिमल्स से वो कहाँ पे जाएंगे? कार्निवोर एनिमल्स में जाएंगे. The process of conversion of inorganic nitrogen compounds into organic compounds that become a part of living organism is called nitrogen assimilation. तो देखो जब तक सॉइल में था नाइट्रेट्स थे तब तक वो कैसे थे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे. कैसे थे? इनऑर्गेनिक. फिर उसके बाद वो हर्बीवोर और कार्निवोर में गए, दैन किस में कन्वर्ट हो गए? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए. और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन. ठीक है. कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन. When plants and animals die,
The proteins present in them are converted into ammonium compounds by the putrefying bacteria and fungi found in the soil. तो जब वो plants और animals die होते हैं तो वो जो प्रोटीन्स उनकी बॉडी में थे वो दोबारा कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. We can define ammonification as conversion of complex organic compounds like proteins into ammonia. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभी क्या फॉर्म हुए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब प्लांट्स डाई हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में. किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमोनिया में. अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. The next is nitrification. Ammonium salt in the soil is converted first into nitrites by nitrosomonas bacteria. कौन से बैक्टीरिया करते हैं, nitrosomonas bacteria. The nitrites are then converted into nitrates by nitrobacter bacteria. इसके बाद नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया. इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. द नाइट्रेट्स सो फॉर्म्ड इन द सॉइल कैन वंस अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. और इनको दोबारा यूज़ कौन कर लेता है, प्लांट्स कर लेते हैं. एंड व्हाट इट इज़ कॉल्ड, it is called nitrification. In shorter words, in easier words, we can see that the conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. जो अमोनिया फॉर्म हुई थी हमारी स्टेप नंबर 3 में, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, नाइट्रेट्स में. और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रीफिकेशन. ठीक है. नाउ द लास्ट स्टेप, डीनाइट्रिफिकेशन. सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. कुछ नाइट्रेट्स को तो क्या कर लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय सुडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस. कौन सा बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, जो कहाँ पे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में. तो इन दिस वे first of all the conversion of nitrates into free nitrogen gas by denitrifying bacteria is called denitrification. कि जो हमारे नाइट्रेट्स थे उनसे क्या फॉर्म हो गई है, फ्री नाइट्रोजन. और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन. लेट्स सी इट अगेन हियर. व्हाट इज़ हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. Then what happens, by lightning it mixes with the oxygen, forms oxide and goes to the soil. यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच गई, सॉइल. फिर इसके बाद एब्जॉर्ब किसने किया, प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया. प्लांट्स ने प्रोटीन्स बनाए, वो कहाँ पे चले गए, एनिमल्स के पास. एनिमल्स के एक्सक्रीशन, जब उनकी डेथ हुई तो वो दोबारा कहाँ पे आ गए, सॉइल में आ गए. और सॉइल से आने के बाद कुछ का क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी. कौन बनाएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में. और कुछ को क्या करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट कर देगा. और इस तरह ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा. दैट इट इज़ कॉल्ड, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. और इससे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंट है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होता. आई थिंक द चैप्टर इज़ क्लियर नाउ. जस्ट टेक अ लुक एट द कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिवीजन. फर्स्टली, what are microorganisms? Microorganisms are living organisms that cannot be seen by naked eyes. Fine. What are their classification? They can be classified into
5 parts that are, what are the 5 parts? That are bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. Here it is: bacteria, virus, algae, fungi and protozoa. We can classify microorganisms on the basis of their use into two parts. First are useful and second are harmful. First is useful microorganisms. They are used in making of food items. Second, making of commercial products, production of medicine, increasing soil fertility, cleaning the environment. Now, in which food items they are used? They are used in making of curd from milk, making bread, pastries, idli, dhokla, and for making ice creams, jellies from agar-agar. Bread are made from yeast cells and curd contains lactobacillus bacteria. The commercially alcohol, beer, coffee, tobacco, acetic acid, lactic acid are produced. Commercial means on a large scale. Cleaning the environment, they decompose the organic matter. Increasing soil fertility, they, by rhizobium bacteria, they fix the atmospheric nitrogen into the nitrates and thus soil fertility is increased. In production of medicines, there are 2 points, that are antibiotics and vaccines. Then harmful microorganisms, there are many harms that are caused by microorganisms. They cause disease in humans, animals and plants. Food is also spoiled. Pathogens, what are pathogens? Pathogens are disease causing microbes. They spread through air, water, food and vectors. Food preservation is must. Food is preserved by chemical methods, by heating, by using oil and vinegar, pasteurization, cooling or freezing, canning, addition of salt, addition of sugar and dehydration. So in this way we have completed our chapter. I think all of you have understood all the points that we have discussed. Okay, so in the next video I will provide a summary of the chapter so you can better revise the chapter microorganisms, friend and foe. So keep studying and have a nice day. Bye.